और हमने जैसा आपको बताया इस वक्त राज्यसभा में इस मुद्दे पर बहस हो रही है। अपनी बातें रख रहे थे गुलाम नबी आज़ाद और बता रहे थे कि किस तरह से इस पूरे खित्ते का जम्मू कश्मीर लद्दाख इसकी तारीख क्या रही है और किस तरह से ये यहाँ तक मामला पहुँचा था। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला लिया गया है बहुत जल्दबाजी में लिया गया है, अगर इस पर शायद थोड़ा और सोचा जाता। ये गुलाम नबी आज़ाद अपने ताल्लुक से उन्होंने कहा है कि इस फैसले ने हिंदुस्तान में जो 29 रियासतें थी वो घटकर कम हो गई हैं। मतलब ये उस पर अपनी बात रख रहे थे। तो अब हम रुक करेंगे। सीनियर वकील हरीश साल्वे ने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। जिस तरह से अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई कि कैसे हैदराबाद में इसको लेकर जश्न मनाया जा रहा था कि ये आर्टिकल 370 जो ख़त्म किया गया, काफ़ी इसका वेलकम किया गया। वैसे सीनियर वकील हरीश साल्वे ने भी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। हमारे साथ हरीश साल्वे सर हैं। सर, सरकार 35A स्क्रैप करने के लिए प्रावधान लेके आई है। सर, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और आपका क्या व्यू है? फैसला तो कर दिया है, 35A हट गया है। ये कंट्रोवर्शियल फैसला तो होगा ही, तो इसके बहुत प्रो भी हैं, अगेंस्ट भी हैं। मेरा अगर आप निजी व्यू पूछें तो मैं हमेशा 35 के खिलाफ था। काउंटर पॉइंट लोग हैं जो उनको लगता है ये बहुत ज़रूरी है। सर, अपोजिशन ये कह रहा है कि ये बहुत फिट केस है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का। पॉलिटिकल फैसले हैं, मेरे हिसाब से तो उसका चैलेंज नहीं बनता, पर आपको सुप्रीम कोर्ट में तो हर फैसला चैलेंज होता है। सर, आपका फाइनल व्यू इस पे क्या होगा कि सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है ये एक बड़े रूप में देखा जा सकता है? तमाम फैसला तो बड़ा है, फैसला बड़ा है और इसको जम्मू और कश्मीर की सूरत बदल देगा ये फैसला। किस तरीके से लागू होता है, कितना इसमें पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस कैसे आती है, ये सब आगे एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है। एक बार कर दिया फैसला। मेरा निजी व्यू इसके खिलाफ था 35A के। मेरे हिसाब से जो हुआ है सही हुआ, और वो मेरा पर्सनल व्यू है। काउंटर पॉइंट भी है ये भी। It's being called by the right wing this, and this is all over. They're calling it the final solution. Sir, the final solution. What does that mean? That means 1942. This was the Nazi plan for genocide. The code name to murder the Jews was called the final solution. What are we witnessing today on August the 5th, 2019? Same path they are taking. What are we saying? We will have the same fate also one day. Sir, I want to take you back to Parliament. January 3rd this year, the then Home Minister, Rajnath Singh ji, assures Rajya Sabha, all is well, bring on the elections in Parliament, we are waiting for the EC. June 29th, not very long ago, the present Home Minister, also in Parliament. Sir, there's a very important date here. March the 10th, parliamentary elections got announced. March 11th, EC appointed 3 observers for Jammu and Kashmir. Please tell me what those 3 EC observers said. They said what they said on April the 15th. And what did they say? They said observers reported to EC that the situation is conducive to hold elections immediately after the Lok Sabha polls. No political party said this. The 3 observers said this. And I know, which is predictable now, in the answer we'll hear, EC, hum log EC se humko kuch lena nahi dena hai. But we all know, sir. We all know what is happening. Sir, there's a lot of talk about, I'm also appealing to my other friends, I mentioned the parties. I'm also through you, sir, appealing to my 3 friends from the Aam Aadmi Party. They have dealt with the Lieutenant Governor now for a long while. For God's sake, don't get into another Lieutenant Governor. Please oppose this legislation. Sir, I will conclude. Yes, please. By paraphrasing 3 or 4 sentences which pretty much summarizes today, beyond the legality, beyond the mockery of parliamentary institution, beyond that, sir. I don't know whether it's anger, disappointment, or all rolled into one, but this is the truth, sir.
And that's why the Trinamool stands here. It's a paraphrase, sir. First, they came for the Dalits. And I said, I'm not a Dalit. So I didn't stand up. Then, they came for the oppressed. And I said, oh, I'm not an oppressed. So I didn't stand up. Today, they came for the Kashmiris. And I said, oh, I'm not a Kashmiri, so I won't stand up. No, sir. We will stand up, because then when they come for me, there will be no one to stand up. Thank you, sir. थैंक यू। श्री सुशील कुमार गुप्ता जी। सुशील कुमार गुप्ता जी, 3 मिनट का समय है, थोड़ा कमी है पर पूरा करिए। धन्यवाद उपसभापति महोदय। माइक सर, माइक। जम्मू कश्मीर, ओके, I'm on the other side now. धन्यवाद साहब। जम्मू कश्मीर, लद्दाख देश का अभिन्न हिस्सा है। धारा 370 हटाना देश हित का मामला है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हमेशा देश हित के मामलों में सबसे आगे रहती हैं। अलगाववाद, आतंकवाद का हमेशा हम विरोध करते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी आज इस बिल का समर्थन करती है। भारत की संसद देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर हमारे देश का पवित्र जो संविधान है, उसको कोई व्यक्ति छेड़छाड़ करे, उसको फाड़े, हम उसकी निंदा करते हैं। ये वो ग्रंथ है जो देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को सर्वोच्च संस्थाओं के शीर्ष पर बैठने का अधिकार देता है। हम उम्मीद करते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में शांति होगी तथा सरकार वहां पे विकास का कार्य करेगी। हम हमेशा पूरे राज्य के अंदर विश्वास करते हैं। मैं अपने मित्र डायरेक्ट जी को बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर के जुल्म को सह लेगी, परंतु देश की अखंडता के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम इसका समर्थन करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अब कश्मीर में शांति कायम होगी तथा वहां पे विकास कार्य होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं मासूम नागरिकों की हत्याएं बंद हो। हम चाहते हैं जवानों को जो लगातार शहादत देनी पड़ती है वो बंद हो। हम चाहते हैं भारी भरकम बजट जो अलगाववाद और आतंकवाद से जूझने के लिए हिंदुस्तान का लगता रहता था, अब वो शांति कायम करने पे लगे और जम्मू कश्मीर के विकास पे लगे और देश के कोने कोने से वहां पर लोग जाकर अपना व्यापार कर सके और जम्मू कश्मीर के लोगों का और विकास हो सके। जय हिंद जनाब। धन्यवाद सुशील जी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी। धन्यवाद श्रीमान। मैं जब 14वीं लोकसभा का सदस्य था तो एक बार पेट्रोलियम कमेटी के सदस्य के रूप में कश्मीर में गया था। एक बार ही गया, श्रीनगर से लेके पहलगांव गुलमर्ग तक। तो जब गुलमर्ग जा रहे थे तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी रुकवा ली और वहाँ सब लोगों ने उतरकर उसकी सुंदरता को देखकर ये कहा कि जो विभाजन हुआ बहुत ख़राब था, कि उसकी वजह से आतंकवाद बढ़ रहा है और लोगों को आने में दिक्कत हो रही है। इतनी खूबसूरत स्टेट है, लेकिन वैसे तो मैं 370 के हटाने के भी पक्ष में नहीं, लेकिन आप तो हटाते ही। अगर 370 हटाना था
तो हटा देते, लेकिन इसको स्टेटहुड आपने क्यों खत्म कर दी? क्या ये जरूरी था कि 370 हटाने के लिए इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए? ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है नहीं। ये अन्याय 29 राज्य हैं, अब 28 रह गए, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, आज वो थोड़ी देर बाद 9 हो जाएंगे। संविधान के अंदर पहली अनुसूची में ये दिया हुआ है सब कुछ। लेकिन जब से आपने वहां पैरामिलिट्री फोर्सेज की संख्या को बढ़ाया और जिस तरह से मीडिया ने एक हाइप पैदा किया देश में, आपको इस बात की भी चिंता करनी चाहिए। कई बार अनावश्यक रूप से इस मीडिया के द्वारा लोगों के मन में आशंका, भय और निराधार तमाम चीजें पैदा हो जाती हैं। सारे देश में ये था कि कुछ अनहोनी हो सकती है। 2-3 दिन पहले ही जब यहाँ चर्चा चल रही थी किसी मसले पर, तो इधर से बहुत जोर शोर से कहा जा रहा था कि कश्मीर में स्थिति को इतना सुधारा, अमरनाथ यात्रा शांतिमय तरीके से, पहली बार हिंदुस्तान में शांतिमय तरीके से संपन्न होने जा रही। अकस्मात आपने अमरनाथ यात्रियों के श्रद्धालुओं को वापस कर दिया, सारे होटलों की बुकिंग बंद कर दी, कोई टूरिस्ट नहीं जा सकता था, थे उनको सबको निकाल के बाहर कर दिया, जाइए वापस जाइए। इससे लोगों के मन में एक आशंका पैदा हुई कि कोई ऐसी वैसी बात हो सकती है जिससे अशांति हो। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अशांति होने से अलगाववादियों को कोई प्रसन्नता नहीं होती, प्रसन्नता होती है अलगाववादियों को। लेकिन जो शांतिमय तरीके से रहने वाले लोग हैं, उनके मन में भय होता है, उनको डर लगता है, तो वो और ज्यादा खतरनाक स्थिति बन जाती है। अलगाववादी तो चाहते ही है कि वहां गोली चले, अलगाववादी चाहते हैं कि लोग मारे जाएं, अलगाववादी चाहते हैं कि पुलिस की गोली के रिएक्शन में लोग भारत के साथ जो उनका जो निर्दोष लोग मारे जाएंगे, उनका जो जुड़ाव है उसमें कमी आए। यही तो चाहेंगे, और आप वही करने जा रहे हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब कहीं पुलिस के बल पर, सेना के बल पर या अन्य तरह के फोर्सेस के बल पर पब्लिक को दबाने की कोशिश की गई, तो पब्लिक को दबाया नहीं जा सका, नहीं दबाया जा सकता। जब जनता उठ खड़ी होती है किसी मामले का, आपने कॉन्फिडेंस में ले लिया होता थोड़ा सा भी लोगों को, जनप्रतिनिधियों को भी, तो ये जो मीडिया के जरिए जो भय जैसा पूरे देश में वातावरण पैदा कर दिया था, वो नहीं होता। वहां की ही, कश्मीर की ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहां के जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भी विश्वास में ले लिया होता, तो जो आशंका लोगों के मन में है वो नहीं होती। अब तरह तरह की चर्चाएं चल रही, तो वहाँ ऐसा हो सकता, वहाँ ऐसा हो, सारे टेलीफोन बंद कर दिए गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। तो ये जब प्रचार बाहर जाता है मीडिया के माध्यम से, देश के अंदर नहीं, देश के बाहर भी तो जाता, आप उसे नहीं रोक सकते। अगर हिंदुस्तान से बाहर के मुल्कों की ओपिनियन हमारे खिलाफ हो जाए, तो क्या वो हमारी विदेश नीति को प्रभावित करने वाली चीज नहीं होगी? क्योंकि हम इस आज के युग में अपने को आइसोलेट करके नहीं चल सकते। हमें अपने मित्र देशों की संख्या को बरकरार रखना होगा या बढ़ाना होगा, और हमारे खिलाफ जो लोग हैं, उनको, देश हैं, उनको हमें
कोशिश करनी होगी कि वो भी हमारे पक्ष में आए। लेकिन अगर लोगों को ये लगेगा कि हिंदुस्तान में एक राज्य को एक पुलिस स्टेट जैसी स्थिति बनती जा रही है, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके संबंध आपसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो इसी इशू को लेके ओपिनियन बदल सकते हैं। इसलिए जो आप अपने लाभ के लिए जो मीडिया का प्रयोग करते हैं वो तो करेंगे ही, कोई बात नहीं, लेकिन देश के हित को भी तो देखिए कि ये जो दिखा रहे हैं उससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्टीमेटली हमारा ही नुकसान हो, हमारे देश का नुकसान हो। ये देखना पड़ेगा आपको। और दूसरी ये कि मैं इस तर्क को बहुत सोचा मैंने कि ये जो यूनियन टेरिटरीज आपने बना दी हैं और लद्दाख की और जम्मू कश्मीर की 2 यूनियन टेरिटरी, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की व्यवस्था की। अभी तो एक ही लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों को देखेगा, हो सकता है बाद में अलग अलग आप अपॉइंट करें। उसकी सतपाल मलिक को वापस होना है और जो गवर्नर हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे। तो इसके पीछे का जो सोच है आपका, वो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जहाँ हैं, और ख़ास तौर से पौंडीचेरी में भी और दिल्ली में भी, ये अभी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रो रहे थे रोजाना कि साहब वो, मैं तो गया था मैं देखने गया था जब इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर एक अस्पताल में भर्ती थे क्योंकि बीमार हो गए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ मुख्यमंत्री धरना दिए हुए थे, मुख्यमंत्री से मिलने तक मना कर दिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। कितने दिन बैठे रहे? मैं गया था संजय सिंह की नहीं गया था? आप तो थे ही। वो स्थिति नहीं होती। और पौंडीचेरी के चीफ मिनिस्टर जो कि हमारे साथ हम लोग रहे, बहुत दिनों से पुराने हमारे मित्र हैं, वे पूरी कैबिनेट के साथ एक बार मेरे घर आए। भूख हड़ताल पे बैठा था दिल्ली में, धरने पे बैठा। मेरे घर आए कि वो ऐसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजा दी, हमें रोज परेशान कर रहे। तो मुख्यमंत्री कोई हैसियत ही नहीं। तो पौंडीचेरी वाला ही आपने इसमें प्रोविजन किया है, आपने प्रोविजन किया है पौंडीचेरी का ही। मैंने पढ़ा है थोड़ा सा, क्योंकि जल्दी में पढ़ा, अभी इतनी जल्दी आप लाए। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा माननीय गृह मंत्री जी आपके माध्यम से, मैं नहीं बनना आप कहोगे मेरी तरफ देखो, आपके माध्यम से, कि इतनी जल्दी क्या पड़ी थी ये बिल? नहीं, मैं साल की बात नहीं कर रहा हूँ। आज तारीख है 5, इसको आज आप सर्कुलेट करके लोगों को पढ़ने को भी मौका मिल जाता है। ऐसे आज पास करा सकते हो तो कल भी पास करा सकते हो, परसों भी पास करा सकते हो। एक दिन में कौन सा 30 तीर मार लोगे जाके कश्मीर में? हैं? क्या हो जाता? हम लोगों को पूरा अंदाज भी नहीं इसमें क्या क्या है। मैं तो थोड़ा सा देख लिया इसमें क्या है। तो मैंने नाग पंचमी है, नाग पंचमी के दिन पूजा करते हैं, सांप को जहर पिलाते हैं और 5 साल काटता रहता है। फिर दूध पिलाते हो। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि 5 साल तक तो खिलाफत करोगे और 5 साल बाद फिर उसको दूध पिला दोगे, फिर 5 साल के लिए वो काटने के लिए हो जाएगा तैयार। तो ये बहुत जल्दबाजी में कदम उठाया है आपने, बहुत जल्दबाजी में, और हमें लगता है इस पर ज्यादा सोचा भी नहीं है आप लोग। अगर मान लीजिए अगर कहीं कश्मीर में अशांति हुई, अभी तो कंट्रोल में स्थिति थी, बहुत ज्यादा कंट्रोल में हो गई, पहले से बहुत बेहतर स्थिति हो गई, इसमें दो राय नहीं। लेकिन अब हमें संदेह है, आशंका है इस बात की कि वहाँ अशांति हो सकती है, क्योंकि बॉर्डर के अक्रॉस द बॉर्डर से अब कोशिश होगी वहाँ अशांति फैलाने की। और ये जब कोशिश होगी और अशांति पैदा होती है तो पहले से
बदतर स्थिति हो सकती है। हम कर तो रहे हैं अच्छे के लिए, लेकिन ये पहले से ज्यादा खराब स्थिति हो सकती है। लेकिन मैं जानता हूं कि आपको इस बात की चिंता नहीं है कश्मीर में आदमी मरे या जिए, आपको इस बात की चिंता है शेष देश में लोगों को कहने को देखिए 370 धारा हटा दी। लेकिन यहां जो बैठे हुए लोग हैं वो इस देश के रहने वाले लोगों से, चाहे वो किसी धर्म और जाति के हों, सबसे स्नेह करते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। अनलाइक यू, सुन नहीं रहे। ये सेंटेंस आपने नहीं सुना। हम लोग जो इधर बैठे हैं वो कोई भेदभाव नहीं करते धर्म और जाति उसके नाम पे, रीजन के नाम पे। अनलाइक यू डू इट। और इसलिए सारे देश में मैसेज देने के लिए, एक धर्म विशेष के लोगों को मैसेज देने के लिए, देखिए मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। चुनाव में आपको लाभ हो चाहे देश का कितना ही नुकसान हो, दिस इज योर प्रिंसिपल, और इसी आधार पर आगे भी आप करेंगे, मैं जानता हूं काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो आप ये बिल लाए हैं इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर रामगोपाल यादव जी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उपसभापति महोदय, मैं कोई भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्ता है और हम सब गृह मंत्री जी के उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। मेंबर्स हैं इस ऐवान के, हमें इसे पढ़ने का बहुत ज़्यादा मौका भी नहीं मिल पाया। इस बिल का आज जब ये चर्चा चल रही है, even before this debate concludes and even before the Honorable Home Minister has finished completing his reply, this day, the day of 5th of August 2019, has already gone in the history of India. As a day of redemption, as a day of resurgence, as a day of rejuvenation. Article 370 was a miscarriage of history and one of the gravest blunders of the post-independence India. उसका प्रायश्चित करने की घड़ी आ जाई है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम संसद के एक ऐसे समय में सदस्य हैं जब ये प्रायश्चित हो रहा है। शायद विधाता को यही मंजूर था कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी बागडोर संभालें और गृह मंत्री श्री अमित शाह हों, इसलिए हमें 70 वर्ष इसका इंतजार करना पड़ा, क्योंकि परमात्मा की विधि को कोई बदल नहीं सकता। और 3 पीढ़ियां इस अन्याय और मजबूरी को झेल करके यहां तक पहुंची। बात लंबी नहीं करनी है, मुझे हैरत इस बात की हुई कि कांग्रेस पार्टी को इसको लेकर के क्यों आपत्ति हुई। हमने तो उनका अधूरा काम पूरा किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं कह गए थे ये अस्थाई है, टेम्पररी है, और उनका ये वाक्य था कि ये धीरे धीरे घिस जाएगी। द एग्जैक्ट फ्रेज यूज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नेहरू वाज when there was some reservations expressed कि इसकी चिंता ना करें, ये वक्त के साथ घिसते घिसते घिस जाएगी। उनके अनुयायियों के द्वारा वो घिसाने का काम नहीं हुआ और ये हिस्से में आया श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह जी की। और इसी प्रकार सन 1964 में एक व्यापक चर्चा हुई थी संसद में जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, और उसका उत्तर देते हुए तत्कालीन गृह मंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा ने कहा था कि लगभग सभी दलों का यह मत है कि अनुच्छेद 370 के जाने का समय हो चुका है, सरकार को थोड़ा समय दिया जाए, आगे कैसे बढ़ना है हम इस पर विचार करेंगे। फिर परिस्थितियां बदलती गई, उस इतिहास में नहीं जाना, बहुत बार हमने यहां दोहराया है, सीरीज ऑफ ब्लंडर्स वन आफ्टर द अदर। और इसलिए बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं केवल इतना कहूंगा कि आज सारे के सारे जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास का माहौल है, चाहे जम्मू है, चाहे लद्दाख है, जिसकी यूनियन टेरिटरी की आज मांग पूरी हो रही है,
चाहे कश्मीर घाटी है। द कॉमन मैन वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ श्रीनगर टुडे इज रिजॉइसिंग इट। वो बोल नहीं सकता क्योंकि खौफ का पर्दा उसके ऊपर है। कर्फ्यू खुलने से पहले ही वो रिजॉइस करना शुरू कर दिया। ही हैज ऑलरेडी बिकम अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट जर्नी लेड बाय मोदी। और इसलिए मैं बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए, जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए ये प्रावधान लाने में हम सक्षम रहे। चिंता हो सकती है, आपत्ति हो सकती है उन लोगों को जिनका कहीं ना कहीं स्वार्थ पर कोई ना कोई हनन होता हो, जो 8-10% वोटर टर्नआउट के लाभार्थी रहे हों सांसद और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए। उस चर्चा में नहीं जाना। आई कंक्लूड बाय सेइंग that we are a part of a global world. India today is a part of a global world. And we have no right absolutely to deprive Jammu and Kashmir being a part of this global world. हमारी उम्मीदें एक जैसी, हमारी आकांक्षाएं एक जैसी, हमारी आशाएं एक जैसी, हमारी हसरतें एक जैसी, हमारी तकलीफें और दिक्कतें भी एक जैसी। जैसे वो एक शेर है कि मेरी जमीन भी तुम्हारी जमीन से मिलती है, दीदाए पीरे हस्ती बेबसी भी एक सी है। हमारी कहानी एक, हमारी मुसीबतें एक, हमारी उम्मीदें एक, फिर भी हम वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। तो जैसे कहते हैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, 3 पीढ़ियों ने सजा पाई है, आज मौका है इससे आगे बढ़ने का। एंड सर्टनली एज आई सेड, वी हैव नो राइट टू डिप्राइव जम्मू एंड कश्मीर बीइंग पार्ट ऑफ ग्लोबल इंडिया, and no right to deprive the youth of Jammu and Kashmir to be the beneficiaries of these enormous avenues unleashed in India by the Modi government, and to deprive Jammu and Kashmir to be a part of new India's journey led by Modi. Thank you, Deputy Chairman, sir. Shri Vinay Vishwam ji. Sorry, just wait a minute. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at sitting held on the 2nd of August 2019 agreed without any amendment to the Airports Economic Regulatory Authority of India Amendment Bill 2019, which was passed by the Rajya Sabha at sitting held on the 16th of July 2019. 2. On the 5th of August 2019, agreed to the amendments made by the Rajya Sabha to the Motor Vehicles Amendment Bill 2019, passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 31st of July 2019, and agreed to the amendments made by the Rajya Sabha to the National Medical Commission Bill 2019, passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 1st of August 2019. Shri Vinay Vishwam. Thank you, sir. सर, और इस वक्त राज्यसभा में इस बिल को लेकर तमाम पार्टियों के लीडर अपने अपने मौक़िफ़ को वहाँ रख रहे हैं और इसी के साथ ये बातें भी की जा रही हैं। कुछ लोग इसके फेवर में कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि इसने बहुत जल्दीबाजी में किया गया है। बहरहाल हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। और अजी लोकतंत्र को मोदी सरकार ने उड़ा दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। एक तारीखी फैसला, 70 सालों के बाद जम्मू कश्मीर से 370 जो दफ़ा है 370 उसे हटाने का फैसला किया गया है और इस फैसले के हक में और कुछ इसके मुखालफत में पार्लियामेंट में अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कई जगहों से इस फैसले के बाद सड़कों पर खुशियां मनाने की खबरें भी आ रही। जम्मू कश्मीर पर सरकार के बड़े फैसले पर मुल्क में जश्न का माहौल भी है। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों ने ढोल नगाड़ों के थाप पर रक्स करके और मिठाइयां तकसीम करके सरकार के फैसले का इस्तकबाल किया। भोपाल और मुंबई में, पटना के साथ साथ मुंबई और भोपाल से भी सरकार के फैसले पर लोगों ने ज़बरदस्त जश्न मनाया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 4 तस्वीरें हैं पटना, दिल्ली, मुंबई और भोपाल की।
दिल्ली में आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये कश्मीरी पंडित हैं, ये इस फैसले का खैरमकदम कर रहे हैं। पटना में भी जो लोग हैं वो इस फैसले का खैरमकदम कर रहे हैं। इनमें कई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग हैं और मुंबई में भी लोग इस फैसले का खैरमकदम करते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल में भी इस फैसले का खैरमकदम किया जा रहा है। और एक जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का क्या कहना है, ये भी सुनिए। आज 5 अगस्त हिंदुस्तान की जमहूरियत का सबसे काला तरीन दिन है, जब यहाँ की पार्लियामेंट में चोरों की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों से वो सब कुछ छीन लिया गया जो उन्हें इसी पार्लियामेंट ने दिया था। कई दिनों से यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद को ये कह के बढ़ाया गया कि अमरनाथ यात्रा और टूरिस्ट के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से अटैक होने वाला है। इतना बड़ा मुल्क और एक छोटी सी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट से डर गया और कश्मीर को एक खुली जेल बना दिया ताकि कोई भी इस नाजायज़ फैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाए। हिंदुस्तान के साथ हमारा इलाक़ एक बाइज़्ज़त मुआहदा था जिसको आज खुद ही मरकज़ी सरकार ने इसराइल की तरह एक नाजायज़ कब्ज़े में बदल दिया। आज जम्मू कश्मीर के लोग ये सोचने के लिए मजबूर हैं कि हमारे लीडर्स ने पाकिस्तान को रिजेक्ट करके हिंदुस्तान के साथ जुड़ने का जो फैसला किया था वो शायद सही नहीं था, क्योंकि जिन शर्तों पे हमारे मुल्क के साथ मुआहदा हुआ था वो शर्तें आज हिंदुस्तान ने खुद ही तोड़ दी। इसलिए हम कश्मीरियों को अपनी इज्जत और बका के लिए जदोजहद के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ये ऑडियो पैगाम था महबूबा मुफ्ती का। और हम कुछ और खबरें आगे बढ़ते हैं। भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने जम्मू एंड कश्मीर से दफ़ा 370 को ख़त्म करने के मरकज़ी हुकूमत के फ़ैसले को गंदी नीयत का फ़ैसला करार दिया। आरिफ मसूद का कहना है कि वो मुल्क के साथ हैं, लेकिन अगर इस फैसले में तमाम सियासी पार्टियों के लीडरान को शामिल करके ये फैसला किया गया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। आरिफ मसूद मानते हैं कि मरकज़ी हुकूमत से मुल्क में नफ़रत आम होगी इस फैसले के बाद से और इस रवैये से जो मुल्क की सेहत के लिए शायद ठीक नहीं है। ये उनका कहना है। फैसला अगर मैं अभी भी कहूँगा अगर मुल्क के लिए बेहतर है तो ठीक है, अच्छा है, और आप ये सोचते हैं कि इसके लिए मुल्क के लिए बेहतरी थी, लेकिन अगर इस डिसीजन को लेना था तो सारे लोगों का साथ लेकर ये काम करना चाहिए था। और इस तरह करना ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, प्रजातंत्र के खिलाफ है। ये जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में सबकी राय लेना हमारी ज़रूरत है। हम डिक्टेटर लोग नहीं हैं, ये हिंदुस्तान की ना परंपरा रही है। पहले भी कई कानून बदले गए हैं, सांसद में लाए गए हैं और कई ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन जब भी हुई हैं तब सबसे बात कर हुई है। ये एक गैर जिम्मेदाराना सरकार का फैसला है जो इस तरह सबसे बड़ा। और दूसरा दुख की बात यह है कि जब मौजूदा दौर में अमरनाथ यात्रा चल रही हो, ऐसे वक्त में ये कदम उठाया कि अमरनाथ यात्री को ही परेशान करना, उनको हटाना, ये भी एक अफसोसनाक बात है। ये कहीं ना कहीं नफरत फैलाने और एक गंदी नीयत का फैसला है। और जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने को लेकर मुंबई में शिवसेना कारकुन भी जश्न में डूबे नजर आए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग की, उसके बाद देश भर में एक अलग सा माहौल दिखाई दे रहा है। मुंबई की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से शिवसेना के तमाम जो लोग हैं वो धारा 370 हटाने को लेकर यहाँ पर खुशी का इजहार कर रहे हैं और यहाँ पर सेलिब्रेशन का पूरा तरह से माहौल दिखाई दे रहा है। और उनका ये कहना है कि धारा 370 हटाने की जो बात थी बरसों पहले, बाला साहब ठाकरे जो थे शिवसेना के सुप्रीमो, वो कहा करते थे अक्सर, और आज भी शिवसेना की जो भूमिका है वही है। आइए बात करते हैं इनसे कि क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया है इस धारा को हटाने को लेकर। आप बताइए कि क्या कुछ कहना चाहती हैं। आप लोगों ने यहाँ सेलिब्रेशन जैसा माहौल बना रखा है। हमारे पूजनीय बाला साहब ठाकरे की बहुत पहले से ही ये इच्छा थी कि 370 कलम रद्द हो जाए। उधर जो बंदिशें लगी हुई है कश्मीर में, जो सरकार थी उनकी बंदिशें लगी हुई थी, हिंदुस्तान अखंड रहे, ये बाला साहब ठाकरे की बहुत इच्छा थी। उधर जो अभी जो बेरोजगारी थी इतने दिन से, वो कहीं हद तक कम हो जाएगी अपने सरकार का उधर होल्ड रहेगा तो। और हम लोग बहुत सब खुश है
इतना जल्लोष कर रहे हैं, बहुत आनंद है हम लोग को। माधुरी जी, आप बताइए क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं? अक्सर जब कोई स्टेट्स के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है चेंजेस होने की संभावना रहती है। सही में ये बहुत अच्छा निर्णय मोदी जी का है। हमारे वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी जो आज हमारे दुर्दैव से हमारे बीच में नहीं है, जल्लोष हमारे साथ ये करने के लिए, लेकिन बदलाव तो बहुत से आएंगे क्योंकि बेरोज़गारी जो थी वहाँ पर कश्मीर में, वो बेरोज़गारी पहले कम हो जाएगी। केंद्र शासित के अंदर वो कश्मीर आ जाएगा, अभी आ गया है। और उधर जो एकाधिकारशाही थी, हम लोग गुलामी जो बोलते हैं, गुलामी के तहत ही सब लोग चल रहे थे। आज इधर ये हो जाएगा, आज बम फूट जाएगा, ये फूट जाएगा, वो सब धीरे 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 कम हो जाएगा। अखंड हिंदुस्तान की तरफ हम लोग अभी जा रहे हैं। जो हम सिर्फ नारा देते थे, अभी वो मूर्त रूप में आ रहा है। अभी उसके लिए हम मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके पहले बाला साहब जी का जो सपना था वो आज पूरा हो गया है, और वो सपना हमारे जो लश्कर है, हमारे जो जवान है वो सीमा पर लड़ रहे हैं, लेकिन ये धारा बंद होने के लिए हमारे जो सांसद है वो संसद में लड़ रहे थे। ऐसा उनके लिए, उन सांसदों के लिए तहे दिल से आभार मानते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। खास करके उनका अभिनंदन आज करना चाहिए। उन्होंने एक ही रट हमेशा से लगाए रखी और वो आज रट पूरी हो गई, उसके लिए उनका धन्यवाद। ये थी तमाम शिवसेना की महिला नेता जो साफ कह रही थी कि धारा 370 हटाने का जो सबसे बड़ा सपना था वो शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे का था, जो आज पूरी तरह से साकार होता नजर आ रहा है। कैमरामैन सरोज जलाल के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। और उधर नागपुर में भी लोग सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे हैं और मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं। माननीय जनसंघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो सपना देखा था, उसके लिए बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, वो आज के दिन पूरा हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी नागपुर की महानगर की ओर से माननीय श्यामा प्रसाद जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। और माननीय मोदी जी होंगे, माननीय अमित जी होंगे, नितिन जी होंगे, सारा केंद्र सरकार होगा, इनको बहुत सारी बधाई देता हूँ। इस भारतवासियों को बधाई देता हूँ कि इनका सारों का सपना आज पूरा हुआ है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा में हुई उपसभापति महोदय, संविधान सभा की बैठक एक नहीं 2 दिन एडजॉर्न होना पड़ा इस बात को लेकर कि बिना संविधान सभा के मत को जाने किसने माउंटबेटन को गवर्नर जनरल अपॉइंट कर दिया, किस आधार पर किया। अंत में सिर्फ नेहरू जी की प्रतिष्ठा को देखते हुए संविधान सभा ने माउंटबेटन को गवर्नर जनरल स्वीकार किया। उसी माउंटबेटन के एडवाइस से हम वहां ले गए संयुक्त राष्ट्र में। मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, आप जो काम खुदरा में कर रहे थे उसे हमने थोक भाव में कर दिया। आपने कैसे खुदरा में किया उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। 1964 में जब शेख अब्दुल्ला जेल से बाहर हुए, शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में अयूब से बात कर रहे थे, उसी बीच पंडित नेहरू का देहावसान हुआ। शेख अब्दुल्ला ने लंदन से शास्त्री जी को एक पत्र लिखा। 17 मार्च 1964 को शास्त्री जी को लिखे गए पत्र को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पत्र में शेख अब्दुल्ला ने शास्त्री जी से कहा, यू आर रिवर्सिंग द प्रोसेस व्हिच वाज इनिशिएटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। क्या रिवर्स कर रहे थे शास्त्री जी? जिस सदर ए रियासत की बात चल रही थी, सदर ए रियासत और प्रधानमंत्री की बात चल रही थी, संविधान के 6ठे संशोधन के द्वारा शास्त्री जी की सरकार ने दोनों को हटा दिया था। सदर ए रियासत की जगह गवर्नर होगा, प्रधानमंत्री की जगह चीफ मिनिस्टर होगा। पूरी प्रक्रिया को ठीक करने का काम आपने शुरू किया, लेकिन आप डर डर के कर रहे थे, समझौता करके कर रहे थे। आज हम साहस के साथ कर रहे हैं, थोक भाव में कर रहे हैं, कश्मीर को पूरी तरह से भारत में एक साथ कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जी कह रहे थे कि मस्तक को काटा जा रहा है, मस्तक को काटा नहीं जा रहा। और हम अब सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे मनोज कौल का। मनोज, काफ़ी देर से हम सब इस खबर पर बने हुए थे
और सुबह भी हमने इस पर बातचीत की थी। अब ये करीब 4 बजने वाला है मनोज। जो फैसला लिया जाना था वो फैसला बिल्कुल तस्वीर साफ हो चुकी है कि क्या जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से फैसला लिया जाना है। सारी तस्वीरें लगभग साफ हैं। राज्यसभा में अभी इसको लेकर अपनी अपनी बातें पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं वो रख रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस वक्त जम्मू में हैं, जम्मू में अब वहां क्या सूरत हाल देखी जा रही है। जिस बात का अंदेशा था, जिसके तहत काफ़ी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के जवान तैनात किए गए थे, दिख क्या रहा है अब वहां मनोज? क्या लग रहा है कि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच भी गई है? हाँ देखें विशाल, जहाँ तक जम्मू का ताल्लुक है लगभग सब लोगों तक ये खबर पहुंच गई है। और जहाँ मजबूरी तौर पर अगर देखेंगे तो लोग सेटिस्फाई लगते हैं इस डिसीजन से, क्योंकि पहले ही जैसा कि हम पहले भी ये बता चुके हैं कि ये जो मामला था इसमें राय बटी हुई थी। कश्मीर की राय अलग थी, जम्मू की राय अलग थी। जम्मू के लोग ये चाहते थे कि दफा 370 हटना चाहिए, दफा 35A आर्टिकल जो है वो खत्म होना चाहिए। और जब ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ के लोग जो हैं वो खुश दिखाई दे रहे हैं। मेजॉरिटी हम ये कह सकते हैं, सारे लोग तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मेजॉरिटी लोगों की जो है वो इस फैसले से खुश हैं। हाँ जरूर कुछ एक मलाल लोगों में है कि जो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया है, जिसमें आप जो ये स्टेट थी और अब ये यूनियन टेरिटरी रही, तो उसका मलाल उन लोगों में भी है जो दफा 370 और आर्टिकल 35A के हट जाने से खुश है। और दूसरी तरफ अगर कश्मीर में देखेंगे तो कश्मीर में जो लोगों का हालांकि अभी रिएक्शन आया नहीं है, लेकिन उनका रिएक्शन साफ है। पहले से मालूम है कि किस तरह का रिएक्शन आ सकता है, कि हमने देखा कि जब से ही ये मामला आया तो चाहे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं वहाँ जिनका स्टेक है, बीजेपी को छोड़ के लगभग तमाम सियासी पार्टियां ये चाह रही थी और उन्होंने ये बयानात भी दिए थे उनके लीडरों ने कि 370 और आर्टिकल 35A का दिफा किया जाएगा किसी भी सूरत में। जब वो ये बयान देते हैं तो ये सीधा मानना चाहिए कि वो लोगों के मूड के हिसाब से बयान दे रहे हैं। हालांकि अभी वहाँ जिस तरह के हालात हैं वहाँ अभी भी तशवीश है, अभी भी हालात बहुत कशीदा हैं कश्मीर वादी में। वो जिस तरह के वहाँ जो सिक्योरिटी बिल्डअप है, जिस तरह से वहाँ इजाफी फोर्सेस तैनात की गई हैं, चाहे वो CRPF हो, पुलिस हो या फिर रैपिड एक्शन फोर्स हो, तो उसके चलते लोगों का रिएक्शन, आम लोगों का रिएक्शन अभी सामने नहीं आया है। लेकिन जाहिर है कि वहाँ के लोग जो हैं वो इस फैसले से खुश नहीं होंगे। जी विशाल। जी मनोज, एक और सवाल इस बात को लेकर है कि न सिर्फ ये कि 370 के हटाए जाने की बात सामने आई, बल्कि जम्मू कश्मीर का डिवीज़न हुआ। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी होगा और मुकम्मल रियासत नहीं होगी, और जो लद्दाख है वो एक अलग रीजन होगा, वो यूनियन टेरिटरी होगी सिर्फ। क्या इस ताल्लुक से भी कुछ बातचीत हो रही है? लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस फैसले से उन इलाकों में तरक्की के कामों को रफ्तार मिलेगी। देखिए विशाल, जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया था कि जम्मू कश्मीर ने अपना स्टेट हुड खोया है। मैंने पहले कहा कि जो लोग दफा 370 को हटाने से, 35A को हटाने से खुश हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं ये मलाल है कि अब ये यूनियन टेरिटरी रही है। एक दूसरी बात ये कि जैसे आपने कहा कि लद्दाख अब अलग रीजन है, अलग यूनियन टेरिटरी है, वहाँ अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। लद्दाख की अगर बात करेंगे तो उस जिले की जो जोग्राफिया है उसमें अगर आप देखेंगे तो 2 जिले हैं, एक करगिल का जिला है और दूसरा लेह का जिला है। करगिल के जो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो ये चाहती थी कि दफा 370 ना हटे, और वो ये चाहते थे कि उनका जिस तरह से इंतजाम चल रहा है उस तरीके पर ही चले। हालांकि जो लद्दाख लेह डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, जहाँ पर बुद्धिस्ट की ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनकी काफ़ी एक दे देना मांग थी। ये काफ़ी देर से वो ये चाह रहे थे
कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। उसकी वजह कुछ और थी। वजह ये थी कि लद्दाखियों को लगता था कि जम्मू कश्मीर रियासत के साथ रह के उन्हें वो हकूक नहीं मिल रहे हैं, उन्हें वो सहूलियात नहीं मिल रही हैं, उन्हें वो रकूमत फराहम नहीं की जा रही हैं, फंड्स उतने वागुजार नहीं किए जा रहे हैं जितने लद्दाख के लोगों को जितना हक है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैक्सिमम जो फंड्स हैं वो या तो कश्मीर डिवीजन में या फिर जम्मू डिवीजन में खर्च किए जाते हैं, कश्मीर वैली में या जम्मू के इलाके में। तो अब जब ये अब लगभग तय हो गया है कि अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी होगी और उसका अपना एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, वहाँ पर भी एक मिक्स्ड रेस्पॉन्स ही आया है। जैसा मैंने कहा कि करगिल के लोग इससे ज़्यादा खुश नहीं हैं, जबकि लेह ज़िले के लोग जो हैं वो इसे अपने लिए एक अच्छा शुगून मानते हैं और उन्हें इस बात की उम्मीद है कि अब जबकि उनकी मांग पूरी हुई है उसके बाद वो जो इलाका है जो कि काफ़ी रकबे पे फैला हुआ है और तरक्की वहाँ उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई है आज तक जितनी भी सरकारें रही। हालांकि कुछ साल पहले वहाँ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का कयाम अमल में लाया गया है लेह के लिए अलग और करगिल के लिए। उसके बाद करगिल के लिए एक जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के नाम से तो उसका वजूद भी अमल में आया। उसके बाद से काफ़ी तरक्की वहाँ देखी गई है, लेकिन इस फैसले से वहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स लोगों का है। जी अब मनोज एक आखिरी सवाल, क्या अब भी ये बातें हो रही हैं कि सरहद के उस पार से कोई बहुत बड़ा शायद हमला या मिलिटेंसी का कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के एहलकारों को तैनात किया गया था? देखिए विशाल, अगर हम देखेंगे आपको हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह का ये फैसला आया है, जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि कश्मीर की जो मेजॉरिटी आबादी है वो दफ़ा 370 और आर्टिकल 35 को कायम रखने के हक में है। कश्मीर के हालात जो है कश्मीर के दो डायमेंशन है। एक डायमेंशन है जो इंटरनल डायमेंशन है। इंटरनल डायमेंशन से मेरी मुराद है कि वहाँ जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है या मिलिटेंसी का एलिमेंट है उसको वो भी मलहूज रखना पड़ेगा। ये जो फैसला आया है, लोगों में अगर नाराजगी ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद ये भी खदशा जाहिर किया जाता है कि हो सकता है कि मिलिटेंसी की वारदातों में ज़्यादा इजाफा हो। और दूसरा एक एक्सटर्नल डायमेंशन है। पाकिस्तान की तरफ से पहले ही एक बयान आया है जिसमें ये कहा गया है पाकिस्तान क्योंकि उनके बकौल उनके की एक मुतनाज़ खित्ता है और आज जिस तरह का जब फैसला मरकज़ी सरकार ने किया है तो वो उसको पसंद नहीं करते हैं। तो जाहिर है कि ऐसे मौके पर पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि जो कंट्रोल लाइन का इलाका है या फिर बैनुल-अक़वामी सरहद है जो पाकिस्तान के साथ मिलती है रियासत जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर जो हालात हैं बॉर्डर एरियाज में या कंट्रोल लाइन के एरियाज में, वहाँ हालात में कशीदगी आ सकती है और वो भी एक चैलेंज होगा हुकूमत के लिए कि वो कश्मीर वैली के अंदर कैसे लोगों को ये समझाने की कोशिश करे ये जो फैसला है ये उनके हक में है और लोगों की और दूसरा जो सेपरेटिज्म का जो वहाँ उनसर है, मिलिटेंसी का जो उनसर है उस पर कैसे काबू पाया जाएगा। और तीसरा ये कि जो सरहद पर या कंट्रोल लाइन पर अगर किसी तरह की हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जाती है तो उसके साथ कैसे डील किया जा सकता है। जी मनोज बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो अब सिर्फ इस बात को लेकर एक जो थोड़ी फिक्र है जो मनोज बता रहे थे कि 370 जो दफ़ा है उसे हटाए जाने की खुशी तो है और ये खुशी मुल्क के बेशतर हिस्सों में भी है, लेकिन जो लोग जम्मू कश्मीर के शहरी हैं उन्हें थोड़ा मलाल इस बात का है कि अब वो स्टेट वाले नहीं रहे। मतलब ये जो स्टेट का दर्जा ख़त्म किया गया और उससे एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर माना गया। हालांकि वहाँ असेंबली होगी लेकिन वो मुकम्मल रियासत का जो एक दर्जा था वो जम्मू कश्मीर से छिन गया है। वो मनोज बता रहे थे कि इसका कुछ मलाल लोगों में है साथी। और इसी के साथ हम फिलहाल एक यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद तमाम अहम जो डेवलपमेंट्स हैं, जो पहलू हैं, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू